হালেলুয়া हालेलुया হালেলুয়া हालेलुया। ঈশ্বরের ধন্যবাদ প্রশংসা হোক परमेश्वर का धन्यवाद प्रशंसा हो। যে ঈশ্বর আমাদের কাছে আজকে নতুন দিন দেখার সুযোগ করে দিয়েছে। और परमेश्वर ने एक नया दिन दिया हमारे लिए। আপনাদেরকে দিয়েছে নতুন দিন দেখার आप সুযোগ। लोगों को नया दिन दिया है। আজ আপনাকে কিছু ইন্টারেস্টিং বিষয় বলবো और आज आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग विषय में बोलेंगे, ঈশ্বরের ব্যাপারে। परमेश्वर के विषय में। তো নিজের হৃদয়কে খুলে দিন तो अपने हृदय को खोल दीजिए আর রিসিভ করুন ঈশ্বরের বাক্যটাকে। और रिसीव करिए परमेश्वर के যে वचन বাক্য को। আমাদেরকে আজকে কি বলতে চাইছে, जो वचन आज हमें क्या कहना चाहता है, বাক্য আপনার সাথে কি কথা বলতে চাইছে, वचन आपके साथ क्या बात करना चाहता বাক্য है, আপনাকে কি শিক্ষা দিতে চাইছে। वचन आपको क्या शिक्षा देना चाहता है। কেন ঈশ্বরের বাক্য হচ্ছে মূল্যবান। क्योंकि परमेश्वर का वचन मूल्यवान है আর ঈশ্বর যা কিছু করে और परमेश्वर जो कुछ करते हैं তা নিয়ে চুক্তি দ্বারা করে। और अपनी चुक्ति के माध्यम से करते हैं। ঈশ্বর যা কিছু করে परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं তার নিজের বাক্য দ্বারা করে। अपने वचन के माध्यम से আমাদের करते কাছে দুটো নিয়ম আছে, हैं। हमारे पास दो नियम है, একটা হচ্ছে নতুন নিয়ম, एक है नया नया नियम একটা হচ্ছে পুরাতন নিয়ম। और एक पुराना नियम। আর এই দুটো नियमेর মধ্যে और इस दो नियम के माध्यम से এই দুটো নিয়মকে বলা হয় চুক্তি। और इस दो नियम को बोला जाता है चुक्ति। একটা হচ্ছে পুরনো চুক্তি, एक है पुराना चुक्ति একটা হচ্ছে নতুন চুক্তি। और एक है नया चुक्ति। আর ঈশ্বরের হৃদয়ে কিন্তু এই চুক্তিটা ছিল। और परमेश्वर के हृदय में यह चुक्ति था। ঈশ্বরের হৃদয়ের মধ্যে তার সেই 10টা আজ্ঞা, যে আজ্ঞাগুলো মসিকে দেওয়া হয়েছে সেই ভিতরে ঈশ্বরের ভিতরে ছিল। और परमेश्वर के अंदर में वो 10 आज्ञा था जो मूसा को दिया गया था। वो 10 आज्ञा परमेश्वर के আর अंदर में था। ঈশ্বর চাইছিল ওই চুক্তিটাকে নিজের লোককে দেওয়ার জন্য। और परमेश्वर चाहते थे कि वो चुक्ति को अपने लोगों के पास देने के लिए। আর কিন্তু ঈশ্বর কি করলো, যে চুক্তি দেওয়ার জন্য ঈশ্বর একটা বড় পরিকল্পনা করলো। और इस चुक्ति को देने के लिए परमेश्वर ने एक बड़ा परिकल्पना किया। ঈশ্বর পরিকল্পনা করলো কি, ঈশ্বর পরিকল্পনা করলো কি একটা মহাজাতি বানাবো। और परमेश्वर ने क्या परिकल्पना किया, एक महान और बड़ा जाति बनाने के लिए। পরবর্তীকালে আমরা দেখবো যে চুক্তিটা মানেটা কি। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चुक्ति का मतलब क्या होता है। তিনি কি করলো, তিনি আব্রাহামকে ডেকেছে। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब्राहम को बुलाया আব্রাহামকে ডেকে কি বলেছে, যে আমি তোমার মধ্যে থেকে একটা বড় জাতি নির্মাণ করতে চাই। और उन्होंने अब्राहम को बोला कि तुम्हारे माध्यम से एक बड़ा जाति का निर्माण होगा। আর ওই যে মহান জাতি হচ্ছে স্বয়ং ঈশ্বরের নির্মাণ করা জাতি। और वो जाति था स्वयं परमेश्वर के निर्माण किया हुआ जाति, যার মধ্যে থেকে ঈশ্বর যেন নিজের নিয়মটাকে দিতে পারে, और जिसके माध्यम से परमेश्वर अपने नियम को दे सके, যেন চুক্তিটাকে দিতে পারে। जो चुक्ति को दे सके। ওই চুক্তির দ্বারা যেন পুরো গোটা পৃথিবী যেন আশীর্বাদ যেন হতে পারে। और उस चुक्ति के माध्यम से पूरा पृथ्वी आशीर्वादित हो কেন सके। মনে আছে আব্রাহামকে কি বলেছিল? आप लोगों को याद है अब्राहम को क्या আব্রাহামকে बोला था? বলেছিল যে আব্রাহাম, তোমাকে কেউ যদি আশীর্বাদ করে আমি তাকে আশীর্বাদ করব, কেউ যদি তোমাকে অভিশাপ দেয় আমি তাকে অভিশাপ দিব। और उन्होंने अब्राहम से कहा था कि अब्राहम, अगर कोई तुम्हें आशीर्वाद देता है तो मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, और कोई तुम्हें श्राप देता है तो मैं उसको श्राप दूंगा। এবং তার সাথে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিল আমি তোমাকে দেশ দিব, और उसके साथ प्रतिज्ञा किया था कि तुम्हें मैं एक देश दूंगा আর তোমাকে একটা পিতা দিব, মানে পিতা হবে তুমি, और तुम एक पिता बनोगे, তুমি এই পুরো জাতির তুমি পিতা হবে। और पूरे इस जाति का तुम पिता আর बनोगे। ওর মধ্যে ঈশ্বর নিজের নিয়মটাকে, ঈশ্বর নিজের চুক্তিটাকে স্থাপিত করেছে। और उसके अंदर और उसके माध्यम से परमेश्वर ने अपनी चुक्ति का निर्माण किया और स्थापित किया। আর পুরাতন বিষয়ে, পুরাতন নিয়মে যে চুক্তি ঈশ্বর স্থাপিত করেছে আব্রাহামের মধ্যে থেকে, ওটা আমরা দেখতে পারবো তার আদি পুস্তক তার 17 অধ্যায় তার 9 থেকে আমরা কন্টিনিউসলি পড়লে আমরা ওদিকে দেখতে পারবো। और अगर इस चुक्ति के विषय में आपको जानना है कि अब्राहम के माध्यम से किस चुक्ति को परमेश्वर ने निर्माण किया था, तो अगर हम लोग देखें उत्पत्ति उसका 17 अध्याय का 9 से लेकर पढ़े तो हम लोग देख सकेंगे इसे। ওদিকে পড়ো জয়েল, কি লেখা রয়েছে? और यहाँ पे मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्पत्ति उसका 17 अध्याय का 9 से लेकर 13 पद में बोल रहा है, परमेश्वर ने अब्राहिम से कहा, अब वाचा का ये तुम्हारा भाग है, मेरी ये वाचा का पालन तुम और तुम्हारे वंश करोगे। ये वाचा है जिसका तुम पालन करोगे, ये वाचा मेरे और तुम्हारे बीच है, ये तुम्हारे सभी वंशों के लिए है। हर एक बच्चा जो पैदा होगा उसका खतना अवश्य होगा। तुम चमड़े का ये बताने के लिए काटोगे कि तुम अपने और मेरे बीच के वाचा का पालन कर रहे हो। जब वाचा 8 दिन का हो जाए तब तुम उसका खतना करना। हर एक लड़का जो तुम्हारे लोगों में पैदा हो या कोई लड़का जो तुम्हारे लोगों का दास हो उसका खतना अवश्य होगा। इस प्रकार तुम्हारे राष्ट्र के प्रत्येक बच्चे का खतना होगा। जो लड़का तुम्हारे परिवार में उत्पन्न होगा या दास के रूप में खरीदा जाएगा उसका खतना होगा। हालेलुया 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 हालेलुया। এই যে চুক্তিটা,
ये जो चुक्ति है, আচ্ছা, এই যে গল্পটা রয়েছে এটা কিন্তু ঈশ্বর কিন্তু আব্রাহামের সাথে চুক্তি করেছে, আর তার চুক্তির একটা চিহ্ন ছিল এটা। और ये जो कहानी है, ये कहानी का मतलब है कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक चुक्ति किया था, ওটা হতে ত্বক ছেদ করতে হবে। और उसका मतलब उसको खतना करना होगा, ত্বক ছেদ করতে হবে, खतना करना होगा, যেটা শারীরিক ভাবে। जो कि शारीरिक रूप से। আমি বললাম না একটু আগে যে যার ত্বক ছেদ থাকবে ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ করবে, কেন তার মধ্যে থেকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করতে চায় পুরো পৃথিবীকে। और जिसके माध्यम से होगा खतना होगा, उसके माध्यम से ही परमेश्वर आशीर्वादित करेंगे। কেন ওই যে চিহ্নটা, ওই যে ক্ষতটা, ওটাই কিন্তু ঈশ্বরের চুক্তিকে দেখায় যে ঈশ্বরের সাথে চুক্তি হয়েছে। और वो जो खतना है, वो जो खतना किया जाएगा, उसके माध्यम से परमेश्वर की चुक्ति को दिखाया আর जा এদিকে सकता লেখা है। রয়েছে আব্রাহামকে সোজা বলছে কি যে যতজন রয়েছে 8 বছরের উপরে সবাইকে করতে হবে, এবং কি তোমার চাকর যারা রয়েছে তাদের ছেলেকেও কিন্তু এই ত্বকছেদটা করতে হবে। और अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि जो 8 साल के ऊपर का रहेगा उनको हर एक को खतना करना होगा, और जो उनके घर में दास रहेंगे उनका तक भी खतना करना होगा। এই যে ত্বকছেদটা মনে করে দেয় যে ঈশ্বরের সাথে আব্রাহামের চুক্তি और হয়েছে। यही खतना याद करा देता है, याद दिलाता है परमेश्वर के साथ अब्राहम का चुक्ति। এইটা শুধু একটা না, এবং এর আগেও যদি দেখি নোহর সাথে আব্রাহাম চুক্তি করেছে, তারও একটা চিহ্ন और দিয়েছে। ये सिर्फ नहीं है, अगर इसके आगे हम देखें कि नोह के साथ भी परमेश्वर ने एक चुक्ति किया था, হালেলুয়া, ওটা হচ্ছে রেম্বো। और वो है इंद्रधनुष। ঈশ্বর বলেছে যখনই কিন্তু আমি এই রেম্বোটাকে দেখব তখনই কিন্তু আমি স্মরণ রাখবো যে আমি কখনো এইভাবে আর পৃথিবী ধ্বংস করব না। और परमेश्वर ने कहा जब मैं उस इंद्रधनुष को देखूंगा तब मुझे याद रहेगा कि मैं इस तरह से पृथ्वी को और विनाश नहीं करूंगा। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া, हालेलुया। এবং যদি দেখি আব্রাহাম যে চুক্তির মধ্যে ছিল, और अगर हम लोग देखें कि अब्राहम जो चुक्ति के अंदर था, এই চুক্তির মধ্যে আব্রাহামকে ঈশ্বর বলেছে যে তুমি কিন্তু আমার বন্ধু। কেন যখন আব্রাহামের সাথে যখন চুক্তি হয়েছিল, আর কখনো কিন্তু আব্রাহামকে তিনি সেই চোখে দেখেনি, বন্ধুর চোখে দেখেছে। और जब अब्राहम के साथ ये चुक्ति हुआ था तो अब्राहम के साथ परमेश्वर एक दोस्त के जैसा रहता था, और जब वो इस चुक्ति को देखते थे तो अब्राहम को दोस्त के नाते वो इस चुक्ति के बारे में कहते थे या उसके लिए वो करते थे। আর শুধু এটা আব্রাহামের মধ্যে সীমিত ছিল না, और सिर्फ अब्राहम तक ये सीमित नहीं था, আব্রাহামের যে বংশধর তাদের উপরেও ছিল, ইসাহাক ছিল, যাকব ছিল। और सिर्फ अब्राहम तक सीमित नहीं था, उसका जो वंश था, इसहाक था, याकूब था, उसके ऊपर भी ये चुक्ति हुआ था। কেন আব্রাহাম যখন চুক্তি করেছিল, আর এই চুক্তিটা অ্যাকচুয়ালি কি? और अब्राहम के साथ जब ये चुक्ति किया था तो ये चुक्ति क्या है? চুক্তিটা মানে হচ্ছে, चुक्ति का मतलब है, সোজাসুজি যদি বলি, और सीधा तरह से अगर कहे, তোমার যা তা আমার, तुम्हारा जो है वो मेरा है, আমার যা সব তোমার। और मेरा जो कुछ है वो सब तुम्हारा है। আমার ফাইন্যান্সিয়াল হতে পারে, वो आर्थिक रूप से हो सकता আমার है, ফ্যামিলি হতে পারে, परिवार हो सकता है, আমার জিনিসপত্র হতে পারে, मेरा सामान हो আমার सकता আশা है, হতে পারে, मेरा आशा हो আমার सकता স্বপ্ন है, হতে পারে। मेरा सपना আমি हो যা सकता है। স্বপ্ন দেখব, আমি যা কিছু করব সবই কিছু তার, এবং তিনি যা স্বপ্ন দেখবে সবই কিছু আমার। और मैं जो सपना देखूंगा वो सब उनका है, और वो जो सपना देखेंगे वो सब कुछ मेरा है। ঈশ্বর স্বপ্ন দেখেছিল परमेश्वर ने सपना देखा था, বড় জাতি নির্মাণ করব, বড় জাতি নির্মাণ করব, সবার থেকে উঁচু জাতি থাকবে, ঈশ্বরের স্বয়ং জাতি থাকবে। और बड़ा जाति निर्माण करूंगा, परमेश्वर का स्वयं जाति रहेगा जो बहुत बड़ा रहेगा। আর এইটা করার জন্য ঈশ্বরকে চুক্তি করতে হয়েছে। और इसको करने के लिए परमेश्वर को चुक्ति करना पड़ा। হালেলুয়া, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ঈশ্বরের জাত তার আব্রাহামের জাত তার ঈশ্বরের। परमेश्वर का है जो वो अब्राहम का है, और अब्राहम का जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है। এদিকে সোজাসুজি যদি বলি, और यहाँ पे अगर सीधा যখন तरह से আমাদের कहेंगे, ইন্ডিয়ানদের মধ্যে যখন ম্যারেজ হয় তখন আমাদের টাইটেল চেঞ্জ হয়। और जब हम लोग में जब शादी होता है, विवाह होता है, तो हमारा जो टाइटल है, जो सरनेम है, वो चेंज हो जाता है। তখন যে মেয়েটা থাকে তার টাইটেল চেঞ্জ হয়ে যায়, যদি কারোর সাথে বিবাহ হচ্ছে যে ছেলেটার সাথে, তার টাইটেল যোগ হয়ে যায়। और जब उस लड़की का टाइटल चेंज हो जाता है, जिसके साथ जिस लड़के का शादी होता है, उसका सरनेम उसके नाम के साथ युक्त हो जाता है। এটা হচ্ছে চুক্তি, ये है चुक्ति। যে আজ থেকে আমার সমস্ত ভরণ পোষণের দায়িত্ব তোমার। और आज के बाद से सब कुछ का ख्याल, मेरा जिम्मेदारी सब तुम्हारा है। এটা হচ্ছে চুক্তি একটা। ये है एक तरह का ওর चुक्ति। টাইটেল চেঞ্জ হয়ে যায়। उसका जो टाइटल है वो बदल जाता है। আর এদিকে আমরা দেখতে পারি যখন ঈশ্বরকে যখন বলা হয়েছিল, মুসি গিয়ে বলছিল যে আমি গিয়ে ইসরায়েলদেরকে কি বলবো, তুমি কোন ঈশ্বর? তখন ঈশ্বর বলেছিল গিয়ে বলো আমি আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসাহাকের ঈশ্বর, যাকবের ঈশ্বর। তাদের নামের সাথে ঈশ্বর
परमेश्वरेর টাইটেল যোগ করে और দিয়েছিল। जब मूसा को बोला गया था तो मूसा ने पूछा था कि मैं इजराइलियों को जाकर क्या कहूँ, आप क्या परमेश्वर हो, कौन से परमेश्वर हो? तो उन्होंने कहा था तुम इस तरह से बोलना कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। उनके साथ, उनके नाम के साथ वो परमेश्वर युक्त कर दिया गया था और उन्होंने मूसा से यही कहने के लिए कहा था। ঈশ্বর কোনো মতে আমাদের কিন্তু দাসত্বতে দেখে না, परमेश्वर कभी हम लोगों को दास के रूप से नहीं देखते हैं, আমাদেরকে বন্ধু হিসাবে দেখে। हम लोगों को दोस्त के नाते देखते हैं। আমার যদি কোনো প্রবলেম হয় তিনি ঝাঁপিয়ে আসেন, और हमारा जब कोई समस्या होता है तो वो আমরা उबर पाते हैं हमारे যখনই पास। আমরা কষ্ট পাই তিনি দৌড়িয়ে আসে। और जब हम लोग कष्ट में रहते हैं वो दौड़ के आते हैं हमारे पास। আব্রাহাম বলেছিল যে আমার সন্তান কখন হবে, और अब्राहम ने कहा था कि मेरा संतान कब होगा, ঈশ্বর স্বয়ং এসে তাকে প্রতিজ্ঞা করেছে যে তোমার সন্তান হবে। और परमेश्वर स्वयं आके बोले थे कि तुम्हारा संतान होगा। ঈশ্বর কখনো আমাদেরকে দাসত্বের চোখে দেখে না, परमेश्वर कभी भी हमें दास के रूप से नहीं देखते বন্ধু हैं, হিসাবে দেখে, दोस्त के नाते देखते हैं। বন্ধু হিসাবে দেখে। দোস্ত কে কিন্তু নাতে আমাদের দেখতে প্রবলেম থাকে কি, আমাদের প্রবলেমটা এটাই থাকে যে আমরা সর্বদা মনে করি যে আমরা দাস। और हम लोगों का समस्या ये है कि हम लोग सिर्फ अपने आप को समझते हैं कि हम लोग एक दास हैं। আর এর সুন্দর উদাহরণ দিয়েছে যিশু। और इसका एक सुंदर उदाहरण यीशु मसीह ने दिया है। যিশুকে যখন যিশু গল্পটা বলছিল হারানো পুত্রর কথা, जब यीशु मसीह ने उस कहानी को कह रहे थे वो खोए हुए पुत्र के बारे में, যে দুটো ছেলে ছিল তার মধ্যে ছোট ছেলে চলে গেছে বাইরে, और जो दो पुत्र था जिसमें से जो छोटा लड़का था वो बाहर चला गया था, সম্পত্তি নিয়ে চলে গেছে বাইরে, जो हर संपत्ति को लेकर भाग गया था, যে সমস্ত কিছু বাবার সম্পত্তি নিয়ে গিয়ে বাইরে উড়িয়ে দিয়েছে। और जो पिताजी का हर संपत्ति को लेकर वो बाहर जाके उसको उड़ा दिया। কিন্তু বড় ছেলে পিতার সাথে ছিল, मगर बड़ा पुत्र जो था, बड़ा लड़का जो था वो उस पिता के साथ था। ছোট ছেলে সমস্ত সম্পত্তি হারিয়ে যখন রিটার্ন এসেছে, और छोटा लड़का जब सब कुछ खोकर, संपत्ति को खोकर जब वो वापस आया, পিতার কাছে যখন এসেছে, जब पिता के पास वापस आया, তখন বড় ছেলে এটা শুনতে পেয়েছে। तब बड़ा जो लड़का था वो उसको ये सुनाई दिया। আর জানো বড় ছেলে কি বলেছে? और पता है बड़ा लड़का ने क्या कहा? লুক তার 15 অধ্যায় और इस अगर हम लोग देखें लूक उसका 15 अध्याय का আর 29 और 29 पद, আর কি লেখা রয়েছে জোয়েল? यहाँ पे लिखा हुआ है लूक उसका 31 लिखा है। লুক 31 15 का 31 में जो लिखा हुआ है, जो वो बेटे ने कहा था ये हम लोग सुनेंगे। पिता ने उससे कहा मेरे पुत्र तू सदा ही मेरे पास है और जो कुछ भी मेरे पास है वो सब तेरा है। ये पिता ने कहा था। 29 থেকে পড়ো। 29 अच्छा हम लोग 29 पद से पढ़ेंगे लूक उसका 15 अध्याय का। হ্যাঁ, লুক তার 15 অধ্যায় 29 পদ থেকে আমরা পড়বো। লুক তার 15 অধ্যায় 29 लूक उसका 15 अध्याय का 29 पद से हम लोग देखेंगे। हम लोग सब बाइबल खोलेंगे, बाइबल खोल के हम लोग इसको नोट करेंगे। लूक उसका 15 अध्याय का 29 पद से आप लोग सब बाइबल खोलिए, आप लोग पढ़िए। लूक उसका 15 अध्याय का 29 पद से बोल रहा है, पर उसने पिता को उत्तर दिया देख मेरे बरसों से तेरी सेवा करता आ रहा हूँ, मैंने तेरी किसी भी आज्ञा का विरोध नहीं किया, पर तूने मुझे तो कभी एक बकरी तक नहीं दी कि मैं अपने मित्रों के साथ कोई आनंद मना सकूं। पर जब तेरा ये बेटा आया जिसने वेश्याओं में तेरा धन उड़ा दिया, उसके लिए तूने मोटा ताज़ा बछड़ा मरवाया। हालेलुया 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 हालेलुया। এদিকে বড় ছেলে বলছে यहाँ पे बड़ा लड़का है जो कह যে रहा আমি है দাসের মতন কাজ করেছি, कि मैंने एक सेवक, एक दास के नाते तुम्हारे लिए काम किया আমি है, চাকরের মতন খেটেছি, मैं एक नौकर के जैसा काम किया আমি हूँ, দিনরাত এক করে দিয়েছি। मैं दिन रात एक कर दिया। আর তুমি কি করলে? और तुमने क्या किया? তুমি ছোট ছেলেকে গ্রহণ করে নিলে যে তোমার সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়েছে। और जो छोटा लड़का था उसको तुमने अपना लिया जो तुम्हारी संपत्ति को नष्ट कर दिया। এদিকে প্রবলেমটা কি বলতো? यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है এদিকে बोलिए? প্রবলেমটা হচ্ছে বড় ছেলে ভাবছে ও হচ্ছে দাস যে খেটেই আছে। और बड़ा लड़का ये सोच रहा है कि वो एक दास है, एक नौकर है जो सिर्फ और सिर्फ परिश्रम সে करके काम कर रहा है। চুক্তিটা বুঝতে পারিনি, वो जो चुक्ति है उसको समझ में नहीं সে आया। বুঝতে পারিনি যা পিতার রয়েছে তা আমার রয়েছে, যা আমার রয়েছে তা পিতার রয়েছে। वो चुक्ति को नहीं समझ पाया, जो पिता का है वो मेरा है, जो मेरा है वो पिता का है। ওদিকে 31 এর পদে এদিকে লেখা রয়েছে পিতা বলছে যে সমস্ত কিছু যা আমার তা তোমার। और वो इस 31 पद में 15 का 31 पद में जो पिता कह रहा है कि जो कुछ भी मेरा है वो तेरा है, वो इस विषय को नहीं समझ पा रहा। হালেলুয়া हालेलुया হালেলুয়া हालेलुया। এদিকে আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি যিশু যে গল্পটা বলতে চাইছে ওটা বলতে চাইছে যে চুক্তিটা যেটা করা হয়েছে ওটা কিন্তু আমি তোমাকে বলছি তুমি আমার বন্ধু, যা কিছু আমার সবই তোমার। और यहाँ पे जो यीशु मसीह कहानी के माध्यम से जो चुक्ति को समझाना चाहते हैं कि जो कुछ भी मेरा है वो तेरा है, हम लोग एक दोस्त के नाते हैं, वो ये चीज को समझा रहे हैं। হালেলুয়া हालेलुया। পরবর্তীকালে নতুন নিয়মে और उसके बाद में नया नियम में
চুক্তিটাকে চেঞ্জ করে चुक्ति को बदलकर ওটা হচ্ছে একটা হচ্ছে যে চিহ্ন, ওটা হচ্ছে ঈশ্বরের যে তকছেদ, যেটা আগে শারীরিকভাবে ছিল পুরাতন নিয়মে, ওইটা হয়ে গেছে এখন হৃদয়ের তকছেদ। और जो पुरातन नियम में जो खतना था, शारीरिक रूप से जो खतना किया जा रहा था, वो नया नियम में परिवर्तन होके हृदय के खतने के समान उसको पेश किया गया। हालेलुया हालेलुया। रोमियो তার 2 অধ্যায় 28 পদ। और हम लोग अगर देखें रोमियो उसका 2 अध्याय का 28वां पद, 28 থেকে 28 से 29 29 यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, বাংলাতে লিখে নেবেন। রোমিও তার 2 অধ্যায় 28 থেকে 29 পদ আপনারা পড়বেন, আমি এটা হিন্দিতে পড়ছি। जो बाहर से ही यहूदी है वो वास्तव में यहूदी नहीं है, शरीर का खतना वास्तव में खतना नहीं है। सच्चा यहूदी वही है जो भीतर से यहूदी है। सच्चा खतना आत्मा द्वारा मन का खतना है, ना कि लिखित व्यवस्था का। ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से की जाती है। हालेलुया 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 हालेलुया। এদিকে কিন্তু আমরা এদিকে সোজা আমরা দেখতে পারলাম কি বলতো, এদিকে সোজা আমরা দেখতে পারলাম নতুন নিয়মে যেটা তকছেদ করতে হবে শারীরিকভাবে না, কিন্তু অন্তরে তকছেদ। और जो हम लोग यहाँ पे देख पाए हैं कि नए नियम में जो लिखा हुआ है कि शारीरिक रूप से खतना नहीं होगा, मगर हृदय के अंतरकरण से, हृदय से वो चीज को खतना আর किया এর जाएगा। মধ্যে দুটো জিনিস রিলেটেড আছে। और इसके साथ 2 चीज रिलेटेड है। এক হচ্ছে ব্যাপটিজম एक है बपतिस्मा আর দ্বিতীয় হচ্ছে প্রভুর ভোজ। और दूसरा है प्रभु भोज। এই দুটো হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। ये 2 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। আমি এবার এদিকে ভেঙে বুঝাচ্ছি। और यहाँ पे जरा तोड़ के अच्छे से आप लोगों को যিশুর समझाते দেহ हैं। আর যিশুর রক্ত, यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का शरीर, এই দুটো জিনিস যখন আমাদের অন্তরে যায় ये 2 चीज जब हमारे अंदर जाता है তখন কি হয়, একটা কানেকশন তৈরি হয়, तब क्या होता है, एक कनेक्शन, एक चुक्ति बनता है। একটা চুক্তি তখন হয়। एक चुक्ति बनता है কেন তার ক্ষত বিক্ষত দ্বারা আমরা সুস্থ হয়েছি, और उसके शरीर के तोड़ने से हमें चंगाई मिला এটা है। এটা হচ্ছে চুক্তি। ये एक चुक्ति है। তার শরীরটাকে আমরা গ্রহণ করছি, उसके शरीर को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, আমরা গ্রহণ করছি, তার চুক্তির সাথে আমরা এক হচ্ছি। उसके चुक्ति के साथ हम लोग एक हो रहे हैं। কি হতো আগেকারে, क्या होता था पहले, আমি আমার চুক্তি যখন আমি কারোর সাথে যদি করি, और हम लोग अगर किसी के साथ अपना चुक्ति कर रहे আমি কি हैं, করলাম, আমি নিজের হাত কাটলাম, और हमने क्या किया, हमने अपने हाथों को काटा, আর যার সাথে চুক্তি করবো সেও নিজের হাত কাটলো, और जिसके साथ चुक्ति कर रहे हैं वो भी अपने हाथ को काटा, ও কি করলো, দুজনের হাত মিলালো চুক্তি স্বরূপ। और 2 जन अपने हाथों को मिलाया चुक्ति के रूप से। তার সাথে কি হচ্ছে, उसके साथ क्या हो रहा है, তার রক্ত আমার রক্ত এক হচ্ছে, उसका लहू और मेरा लहू एक हो रहा है। যে আমি আমার যা অসুবিধা সে দাঁড়াবে, তার যা অসুবিধা আমি দাঁড়াবো। मेरा जो समस्या है वो खड़ा होगा और उसका जो समस्या है मैं खड़ा होऊंगा। কি হবে, আমরা কি করলাম, আমরা চুক্তিতে আসলাম, और हम लोगों ने क्या किया, हम लोग एक चुक्ति में बंध गए। এবং যে ক্ষতটা যে দাগটা থাকবে সেটা আমাদের চুক্তির প্রমাণ যে আমার সাথে চুক্তি और হয়েছে। जो खतना का जो दाग रहेगा वो प्रमाण है कि हम दोनों में एक चुक्ति हुआ है। যিশুর ক্ষততে, যিশুর হাতে কিন্তু দাগ রয়েছে, यीशु मसीह के हाथ में एक दाग है, ওটা চুক্তি আছে, वो एक चुक्ति है। যে তোমার পাপের জন্য আমি আমার জীবনটাকে দিয়েছি। और तुम्हारे पापों के लिए मैंने अपने जीवन को दे दिया है। হালেলুয়া हालेलुया। যেমনি আমি বললাম যে চুক্তি মানে হচ্ছে তোমার যা সবই আমার, আমার যা সবই তোমার। और जो जैसे मैंने कहा कि चुक्ति का मतलब है जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा है, वो जो मेरा है वो तुम्हारा है। ঠিক এক্স্যাক্টলি যিশুও তাই করছে। और इसी तरह से एकदम सही रूप से यीशु मसीह भी एक ही जैसा चीज कर रहे তোমার हैं। ভগ্ন চিহ্ন হৃদয় তুমি আমাকে দাও, तुम्हारा तोड़ा हुआ हृदय, तुम्हारे टूटा हुआ हृदय तुम मुझे दो, তুমি আমাকে দাও, तुम मुझे दो, যা কিছু তোমার তুমি আমাকে দাও, जो कुछ तेरा है तुम मुझे दे, তোমার সেই খারাপ জীবনটাকে তুমি আমাকে দাও, तेरे वो बुरा जिंदगी को, जीवन को मुझे दे, তোমার নষ্ট করা জীবন তুমি আমাকে দাও, तेरा नष्ट हुआ जिंदगी तुम मुझे दे, তোমার যে খারাপ, তোমার যে মানে ডিপ্রেশনে রয়েছে সেই জীবনটাকে তুমি আমাকে দাও, তোমার প্রবলেমের জীবনটাকে তুমি আমাকে দাও, तू जो उदासी का जीवन है तू मुझे दे, तेरे समस्या भरा जीवन को तू मुझे दे, যা কিছু আমার সবই তোমার। जो कुछ मेरा है वो तेरा है। যিশু বলছে তোমার তোমার খারাপ জীবনটা আমাকে দাও, यीशु मसीह कह रहा है कि तू अपने बुरे जिंदगी को আর तू मुझे दे, আমার যা আছে সবই তোমার। और मेरा जो कुछ है वो सब तेरा है। আমার যিশুর মধ্যে কি কি গ্রহণ করতে পেরেছি, हम लोग यीशु मसीह में क्या क्या ग्रहण অনন্ত किए? জীবন গ্রহণ করতে পেরেছি, अनंत जीवन, শান্তি গ্রহণ করতে পেরেছি, शांति को ग्रहण किया है, এবং তার অনুগ্রহ গ্রহণ করতে পেরেছি, उसके अनुग्रह को ग्रहण किया है, ধার্মিকতা গ্রহণ করতে পেরেছি। उसके धार्मिकता को ग्रहण किया ঈশ্বর है। যখনই আমাদেরকে দেখে, ঈশ্বর কিভাবে দেখে, যিশুর রক্তের চুক্তির দ্বারা আমাদেরকে और দেখে। परमेश्वर हमें किस तरह से देखते हैं, यीशु
मसीह के लहू के साथ जो चुक्ति है उसके माध्यम से हमें देखते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের জানা। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे যিশু जानना। কিন্তু আমাদেরকে তার সঙ্গী করেছে, यीशु मसीह ने हमें আমাদেরকে संगी दास बनाया করেনি। है, हमें दोस्त बनाया है, दास नहीं। আমাদেরকে দাস বানায়নি। हमें दास नहीं बनाया है। আর যিশু বলছে যা কিছু আমার সবই তোমার, और यीशु मसीह कह रहे हैं जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, আর যা কিছু তোমার সবই আমার। और जो कुछ भी तेरा है वो सिर्फ मेरा है। হালেলুয়া हालेलुया হালেলুয়া हालेलुया। দাস আর চাকরের মধ্যে একটা তফাৎ থাকে। एक दास और एक नौकर में बहुत भेद দাসত্ব, रहता है। হ্যাঁ, দাস আর দাসত্বের মধ্যে একটা তফাৎ থাকে। एक दास और दासत्व में बहुत अंतर रहता है। একটা দাস কি করে সর্বদা নির্ভর করে তার মালিকের উপরে। और एक दास क्या करता है, हमेशा एक अपने मालिक के ऊपर निर्भर रहता है। অনেকজন এটাও চিন্তা করবে কেন অনেক জায়গায় তো যিশু বলেছে। और बहुत को ये सोचते हैं कि बहुत जगह यीशु मसीह ने कहा है। এক্স্যাক্টলি বলেছে, हाँ बोले हैं, কিন্তু ওটা তার আজ্ঞার জন্য বলেছে তোমরা আজ্ঞার মধ্যে তোমরা দাস হও। और वो कह रहे थे कि आज्ञा के अंदर तुम दास रहो, যেই আজ্ঞা আমি দিয়েছি তার মধ্যে তুমি হও। और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दिया है उसके अंतरिक्त तुम दास रहो। হালেলুয়া हालेलुया হালেলুয়া हालेलुया। ঈশ্বর বলছে যে যা কিছু আমি বলেছি তুমি তার মধ্যে তুমি দাসত্ব হও। और जो कुछ भी मैंने कहा है उसके अंतर तू दास रहे। একটা দাস মানে এটা কি? एक दास का मतलब क्या होता है? একটা দাস সর্বদা কিন্তু নির্ভর করে তার মালিকের উপরে। एक दास हमेशा निर्भर करता है अपने मालिक के ऊपर। মালিকের উপরে নির্ভর করে, তার কোনো টেনশন নেই যে আমাকে এবার স্যালারি আনতে হবে, আমাকে ঘর ভাড়া দিতে হবে, আমাকে এদিকে খরচা করতে হবে, খাওয়া নিতে হবে, তার কোনো টেনশন নেই। हाँ, और वो अपने मालिक के ऊपर निर्भर करता है कि मुझे सैलरी मिलेगा, मुझे घर भाड़ा देना है, मुझे खर्चा करना है, उसको कोई टेंशन नहीं रहता है। যখন আমরা তার নিয়মের মধ্যে দাসত্ব হয়ে থাকবো, जब उनके नियम के अंदर हम दास बनकर रहेंगे তখন আমাদের কোনো টেনশন থাকবে না। तब हमारे अंदर कोई टेंशन चिंता नहीं কেন? रहेगा, যখন আমরা তার আজ্ঞা পালন করব, क्योंकि जब हम उनका आज्ञा को पालन करेंगे ওটা হচ্ছে তার চুক্তি, वो है उनका चुक्ति, তার যা কিছু সম্পত্তি সব আমার। जो उनका संपत्ति है, जो कुछ भी है सब मेरा है। ঈশ্বর বলছে যা কিছু আমার সবই তোমার। और परमेश्वर कह रहा है कि जो कुछ मेरा है वो तेरा है। আর ঈশ্বর নিজের নামকে আমাদেরকে দিয়েছে। और परमेश्वर ने अपने नाम को हमें दिया পুরাতন है। নিয়মে যদি আমরা দেখি আব্রাহামের ঈশ্বর, যাকবের ঈশ্বর, ইসাহাকের ঈশ্বর, ঈশ্বর নিজের নামকে তাদের প্রতি দিয়েছে। और पुरातन नियम में अगर देखें तो परमेश्वर ने अपना नाम दिया है, वो है अब्राहम का परमेश्वर, इसाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। परमेश्वर ने अपना नाम दिया है। আর নতুন নিয়মে और नए नियम में যিশু নিজের বন্ধু হিসাবে নিজের নাম দিয়েছে, বলেছে যা কিছু তুমি আমার নামে যাচনা করবে তা তোমার সমস্ত কিছু সাফল্য হবে। যিশু নিজের নাম আমাদেরকে দিয়েছে তার চুক্তির মাধ্যম থেকে। और ये नए नियम में अगर देखें, यीशु मसीह ने अपने चुक्ति के माध्यम से हमें अपना नाम दिया है कि जो कुछ भी मेरा है वो तेरा है, और जो कुछ भी तेरा है वो मेरा है। नए नियम में यीशु मसीह ने ये चुक्ति किया है अपने नाम को हमारे साथ देकर। আর তার ক্ষত বিক্ষত দ্বারা ওটা হচ্ছে তার চুক্তির প্রমাণ। और उसके जो उनके ऊपर जो खतना किया गया था, उनको जो काटा गया था, वो है उनके चुक्ति का एक प्रमाण। আর তাকে যখন আমরা গ্রহণ করি আমাদের অন্তরে, और जब उनको हम लोग ग्रहण करते हैं हमारे अंतर में, যখন আমরা তাকে প্রবেশ করাই আমাদের অন্তরে, তার রক্ত আর আমাদের রক্ত এক হয়ে যায়, যে চুক্তিটাকে প্রমাণ করায়। और उनका लहू और हमारा लहू एक हो जाता है, और उनके चुक्ति को ये चीज प्रमाण करता है। হালেলুয়া हालेलुया হালেলুয়া हालेलुया। আর তার ক্ষতটা, তার দেহটাকে উৎসর্গ করা হয়েছিল আমাদের জন্য। और उनके खतना के द्वारा उनके शरीर को उत्सर्गित किया गया था हमारे लिए। হালেলুয়া हालेलुया। আমরা প্রত্যেকে চুক্তির মধ্যে রয়েছি, আর এই চুক্তি আমাদেরকে বুঝতে হবে। और हम लोग हर कोई एक चुक्ति के अंदर है, और उस चुक्ति को हमें समझना पड़ेगा। আর এই চুক্তির মধ্যে যখন আমরা রয়েছি, और इस चुक्ति में जब हम लोग हैं, এই চুক্তির মধ্যে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করতে और চাইছে। इस चुक्ति के माध्यम से परमेश्वर हम सबको आशीर्वादित करना हालेलुया। चाहते हैं। हालेलुया। ঈশ্বর আপনার বাক্যে আশীর্বাদ করুন। परमेश्वर अपने वचन में आशीर्वादित करे। হালেলুয়া हालेलुया। ঈশ্বর আপনাদেরকে অনেক আশীর্বাদ করুন। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद करे।